Hello students, so we are going to move ahead in the chapter the principles of inheritance and variation, and the previous lecture we were talking about the law of segregation. Okay, and in this lecture we will be talking about the principle or the law of independent assortment. Okay, so we'll talk about the law of independent assortment. Now what does assortment means or what does assorted means? Assorted का मतलब होता है mixture. Assorted का मतलब क्या होता है? Mixture. ओके, मिक्सचर की अगर आप बात करते हो तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है? काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, सो व्हेन आई से कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो असॉर्टमेंट का मतलब है मिक्सचर. मिक्सचर के अंदर काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब जब इन चीजों को सेपरेट किया जाएगा तो जो हर एक कंपोनेंट है इस मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा? वो अलग से सेपरेट होगा. इट इज गोइंग टू सेपरेट डिफरेंटली विदाउट इंटरफियरिंग विद द अदर कंपोनेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो लेट्स से देयर इज अ मिक्सचर. ओके, और वो मिक्सचर में हर एक कंपोनेंट एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, आप उसको निकाल सकते हो, और वो इंडिविजुअल कंपोनेंट डिपेंड नहीं करता है दूसरे कंपोनेंट के ऊपर. सो याले केस में if I talk about the characters. So let's say if there are two characters, so each of the character is going to be the individual character and they are not going to affect the other character. समझ में आ रहा है? So we'll go through the experiment and we'll try to find it out how is it happening. But the concept is the characters are not interfering with the other characters. A pair of characters is not going to interfere with the characteristics of the another pair of characters. They're not going to indulge with each other. ठीक है? So let's start with the lecture. Okay, so the law of independent assortment समझने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है that is to go through the dihybrid cross. ठीक है, तो I'll start with the dihybrid cross. And the reason I term it as a dihybrid cross because I talk about two characters. I talk about two characters here. So that is the reason it is the dihybrid cross. It is the, in the previous lecture we were talking about the single character. यहाँ पे मैं दो characters की बात कर रहा हूँ. ठीक है, और दो characters कौन से यहाँ पे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ? So the two characters are seed color and seed shape. So we have two seed color and seed shape. So this is in terms in regards with the pea plant Pisum sativum से के characters की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपने previous lecture miss किया हो तो. ठीक है, so seed color में we have two variations available. We have two alleles. Okay, so one is going to be yellow and another is going to be green. So we have yellow and green. ठीक है, और seed shape में also we have two variations. Okay, two alleles. One is going to be round and another is going to be wrinkled. Round and wrinkled. ठीक है, in the previous lecture we did talk about कि why the seed is wrinkled. इसके बारे में previous lecture में बात हुई थी, कौन सा एंजाइम था जिसकी वजह से seed wrinkled हो रहा था. ठीक है, so two characters, seed color and seed shape. So when we cross them, when we take the parental generation, तो parental generation लेते हैं यहाँ पे. So male and female. So male में I'll take the, we need to know that the parents are always supposed to be pure. They should be pure. और यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, आपको पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? येलो डोमिनेंट है एंड राउंड डोमिनेंट है. तो ग्रीन और रिंकल्ड क्या हो गया? दे बिकम रिसेसिव. दे बिकम रिसेसिव. ठीक है, तो अल्फाबेट कौन सा यूज करना है आपको? अल्फाबेट रहेगा आर एंड स्मॉल आर, वाई एंड स्मॉल वाई. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अल्फाबेट से लिखूंगा. I'll talk about it directly. So
a male plant consists of yellow seed color and round shape, yellow seed color and round shape, and यहाँ पे we have green seed color and wrinkled shape, green seed color and wrinkled shape. ठीक है, so now what, this is the parental generation, इनके बीच में अब क्रॉस होगा. Okay, so this would lead to the formation of, कौन सा जनरेशन आता है, F1 जनरेशन आता है. ठीक है, this would lead to the formation of F1 generation and this is cross pollination. ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है. पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्या होगा, दिस गोइंग टू बी cross pollination, this is going to be cross pollination. So the F1 generation would end up with obviously the dominant characters, that is round and yellow. Okay, it's going to end up with round and yellow या फिर yellow round. Yellow seed color and round shape. Simple and easy. So this is the F1 generation. F1 generation में क्या किया जाता है, F1 generation में आपको पता है सेल्फ क्रॉस किया जाता है. क्या किया जाता है, सेल्फ क्रॉस. So when we undergo the process of self cross, मतलब ये खुद से ही reproduction करेगा, self pollination. So when the self pollination occurs, the outcome, the phenotypic outcome is, what do we get? We get yellow round, we get yellow wrinkled, we get green round, and we get green wrinkle. This is the outcome. ठीक है, और जो रेशियो होता है, the ratio is 9:3:3:1. 9:3:3:1. ये कैसा आया, इसके बारे में देखेंगे. क्लियर है. सो नाउ यहाँ पे क्या देखना है आपको कि when you look the outcomes, the F2 generation को अगर आप देखते हो, so this F2 generation consists of parental characters. These are the parental characters, they have been repeated here again, but apart from the parental characters, it also consists of new characters, recombinant characters. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो, there are recombinant characters. Yellow and wrinkled तो parent में था ही नहीं, yellow and wrinkled साथ में नहीं थे, parent में अलग अलग थे. Okay, and green and round भी parent में नहीं था साथ में. बट यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू अ प्रोसेस. ओके, आपको पता है कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, there is crossing over taking place. Because of the meiosis, there is crossing over taking place, and because of this there is formation of recombinants. There is formation of recombinants. तो आपको याद रखना है, this is the parental combination. This is the parental combination, and these two are recombinant combinations. These are recombinant combinations. So F2 generation में we would have parental combinations as well as we would have the recombinant combinations, and that is why, that is because of meiosis. That is why, that is because of the meiosis. ठीक है, clear है. So this is parental F1 F2 done. So now ये जो रेशियो आया था 9:3:1, ये किस तरीके से आ रहा है, तो दिस इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस. बट इफ आई पुट इट एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर मैं इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तरीके से कंसिडर करूं, मतलब मैं हर एक ईच कैरेक्टर को इंडिविजुअली अगर आप क्रॉस कराऊं, फिर भी मेरा आंसर आएगा 9:3:3:1. If I perform it in a monohybrid pattern as well, my answer, my ratio would remain the same. How is it possible? So let's see. ठीक है, तो पहले मैं बोल देता हूं कि रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन क्यों डेवलप हुए. रिकॉम्बिनेंट्स ह्यूमंस में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं. और आपको पता होना चाहिए क्यों होता है. Recombinants occurs due to a process
नोन एज, क्या था प्रोसेस का नाम, क्रॉसिंग ओवर, जो प्रोसेस नोन एज क्रॉसिंग ओवर taking place in meiosis। और meiosis में भी अगर मैं स्पेसिफाई करूं कहां पे, तो प्रोफेज 1 में, ठीक है। सो एवरी रिकॉम्बिनेंट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड is because of the process known as crossing over taking place during the meiosis. Done. So now we are talking about the ratio. अगर individually monohybrid cross करके भी देखेंगे तो भी उसका जो रेशियो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर्स कौन से हैं? We have seed shape and seed color. We have seed shape आपने कंसिडर किया है, और दूसरा क्या चीज कंसिडर किया है, सीड कलर, ठीक है। ये मैंने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स लिख दिए। आई एम नॉट डूइंग अ डायहाइब्रिड राइट नाउ, दिस इज एन इंडिविजुअल क्रॉस। सो सीड शेप की अगर मैं बात करता हूं तो वी हैव टू वेराइटीज, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड। एंड सीड कलर की बात करें सो वी हैव टू वेराइटीज एज वेल, दैट इज येलो ग्रीन, दैट इज येलो एंड ग्रीन, ठीक है। सो राउंड, रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। सो लेट्स पुट इट एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी अगर आप करके देखो तो आपने जो आगे मैंने रेशियो लिखा था, क्या था, I'll put the ratio here. We had round yellow, then we had round green, then we had wrinkled yellow, and we had wrinkled green, ठीक है। What was the ratio? 9:3:3:1, क्लियर है। सो लेट्स सी राउंड टोटल आउटकम्स कितने, टोटल आउटकम्स इज 9 + 6 + 1, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 16। टोटल आउटकम्स आर 16, ठीक है। अब राउंड का अकरेंस कितनी बार है, इंडिविजुअली अगर मैं देखता हूं तो राउंड का अकरेंस कितनी बार है, सो 9 + 3, ओके, बाकी नहीं है। सो राउंड का अकरेंस है 12 बार, ठीक है। सो आई कैन पुट इट एज 12/16, ठीक है। रिंकल्ड का अकरेंस कितनी बार है, तो रिंकल्ड इज 3, 1, सो दैट इज अकरिंग 4 टाइम्स, सो आई कैन पुट इट एज 4/16, क्लियर है। अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वुड बी इन्वॉल्व्ड, सो पे अटेंशन टू व्हाट आई से। येलो की बात करते हैं तो येलो का अकरेंस कितनी बार है, 9 बार, सो दैट इज गोइंग टू बी 9/16, आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 3, तो दैट इज 12/16। और ग्रीन का अकरेंस कितनी बार है, सो दैट इज 3 + 1, दैट इज 4, सो 4/16, ठीक है। फर्दर अगर आप इसे देखो तो दिस कैन गो लाइक 3/4, दिस इज गोइंग टू बी लाइक, इसका क्या हो जाएगा 1/4, दिस इज गोइंग टू बी 3/4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/4। या आपको इंडिविजुअली अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो, ठीक है। सो दिस गिव्स मी अ रेशियो ऑफ 3:1, दिस गिव्स मी अ रेशियो ऑफ 3:1 एज वेल, ठीक है। ये मेरा रेशियो है इंडिविजुअल अगर मैं देखूं तो यार यहां पे तो रेशियो तो 9:3:3:1, बट यहां पे क्या है 3:1 3:1 इंडिविजुअली। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ, ओके, वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ एंड डिफाइन द प्रोडक्ट लॉ। फर्स्ट लेट मी अप्लाई इट। सो आपको क्या करना है, ये जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स है, दिस आर इंडिविजुअल इवेंट्स, ये आपने एक इंडिविजुअल इवेंट परफॉर्म किया, ये आपने इंडिविजुअल इवेंट परफॉर्म किया, बट जब आप इन दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स को कंबाइन कर दोगे, इनका जो प्रोडक्ट है कंबाइंड प्रोडक्ट, तो वो आपको क्या देगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का आंसर देगा। When these two individual products are combined, it gives you the product of the dihybrid cross. किस तरीके से, so see round yellow, ठीक है, so that goes 3
into 3, so that gives me 9. ठीक है, 3 into 1 that gives me 3. so that is round and green. राउंड एंड ग्रीन है यहाँ पे. ठीक है, फिर अगर इसको देखते हैं, सो रिंकल्ड एंड येलो, सो 1 into 3, रिंकल्ड एंड येलो आ गया 1 into 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन, सो दैट इज 1 into 1. okay, so that remains 1. so now we have the answer, that is 9:3:3:1. तो मैंने दो इवेंट्स को अगर मैं इंडिविजुअली भी परफॉर्म करूं तो भी उनका जो आउटकम आएगा, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन क्या देगा, प्रोडक्ट फॉर द डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट लॉ. ठीक है, यहां से आपको एक और चीज ये पता चलती है कि वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ये जो यहाँ पे एक कैरेक्टर की बात हो दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड, यहाँ पे दूसरे पेयर की बात हो रही येलो एंड ग्रीन, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर. भले आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्हें दिखा रहे हो या फिर वो अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं डाइहाइब्रिड वाले प्रोसेस में, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. वन पेयर ऑफ ट्रेट assort independently or does not interfere with segregation, okay, pattern of other pair of trait. ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई हैव नो स्पेस राइट नाउ. ठीक है, तो मैं ओके, आई नीड टू रब इट डाउन. सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट वन पेयर ऑफ ट्रेट, ओके, assort independently, अलग अलग असॉर्ट हो रहे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे. और वी कैन ऑल्सो पुट और डज नॉट डिपेंड और डज नॉट इंटरफियर विद द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ अदर पेयर ऑफ ट्रेट. चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको रब कर देता हूं. सो व्हाट डू आई कंक्लूड फ्रॉम दिस, सो वन पेयर ऑफ ट्रेट, वन पेयर ऑफ ट्रेट assort independently, assort independently. दिख रहा है मैंने, ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ आपको येलो ही दिखेगा, रिंकल्ड के साथ आपको ग्रीन ही दिखेगा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, या फिर आई कैन ऑल्सो पुट इट एज डज नॉट और does not interfere with segregation, interfere with segregation pattern of other pair. Segregation pattern of other pair of trait. ट्रेट अगर आपको पता नहीं चलता है तो यू कैन रिप्लेस इट विद द वर्ड कैरेक्टर. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो वन पेयर ऑफ ट्रेट, दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर. सो वन पेयर ऑफ ट्रेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, देखो इंडिविजुअली असॉर्ट हो रहे, डिफरेंशिएट हो रहे, और डज नॉट इंटरफियर, इनके साथ एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं कर रहे, और डज नॉट इंटरफियर विद द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ अदर पेयर ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर्स. assort independently or does not interfere with segregation pattern of other pair of trait or characters. Getting the whole concept clear hai? Done. So now I was talking about the product law. इनको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो मैं इसको फिर से रब करता हूं और मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग jointly. What is product law? Okay, or we can also put it as the product rule. ठीक है, so I'll put it as probability of two events occurring jointly. Probability of two events occurring jointly, okay, that is equal to the product
किसके प्रोडक्ट को इक्वल करेगा? ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, सो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ probabilities of each event occurring independently. Each event occurring independently. So what is the product law or the product rule? So probabilities of two events occurring jointly, okay, that is occurring jointly मतलब किसकी बात हो रही है? डाइहाइब्रिड की बात हो रही है ना? डाइहाइब्रिड में दो इवेंट्स हो रहे थे, एक सीड शेप वाला इवेंट, दूसरा सीड कलर वाला इवेंट. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग जॉइंटली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच इवेंट अकरिंग इंडिपेंडेंटली. क्या मिलेगा? इनका प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो दिस वुड गिव मी दी प्रोडक्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो वही लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच इवेंट अकरिंग इंडिपेंडेंट, दोनों सेम होगा. ठीक है, सो आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हो या आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में परफॉर्म कर रहे हो, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सेम. फिर से देख लेते हैं किस तरीके से. सो 3 into 3 that is 9, 3 into 1 that is 3, 1 into 3 that is 3 and 1 into 1 that is 1. ये आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे 9 and 1 वाले, और आपको ये दो जो थे वो आपके रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस थे. समझ में आ गया? सो दैट इज द प्रोडक्ट लॉ और द प्रोडक्ट रूल. तो भले आप डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, बट जो उसका प्रोडक्ट है, अगर उन दोनों के प्रोडक्ट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अगर इंडिविजुअल लेके आप दोनों मोनोहाइब्रिड के प्रोडक्ट्स को एडअप करो तो भी आपको प्रोडक्ट किसका मिलेगा? आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का ही प्रोडक्ट मिलेगा. सिंपल एंड इजी, डन. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. नाउ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस अपन ने किया उसमें जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए अपन ने, डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए हैं, कौन से कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए? सो वी हैव सिलेक्टेड द सीड कलर and seed shape. We have seed color and seed shape, and seed color is yellow, wrinkled, and this is round, yellow green, not wrinkled, and this is round and wrinkled. ठीक है, जो अल्फाबेट्स यहाँ पे आपको यूज करना, आपको पता होना चाहिए कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर उसी का अल्फाबेट यूज किया जाएगा. और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? सो डोमिनेंट कैरेक्टर इज येलो, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड. तो यही अल्फाबेट्स आपको यूज करने हैं इन द कैपिटल फॉर्म. सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा येलो के लिए Y यूज करूंगा और राउंड के लिए मैं R यूज करूंगा. ठीक है, तो व्हाट अबाउट द ग्रीन एंड रिंकल? तो ग्रीन एंड रिंकल रेसेसिव कैरेक्टर्स है, तो इनके लिए आई कैन नॉट यूज G और W. आपको डोमिनेंट वाला अल्फाबेट ही यूज करना है, बट इन स्मॉल लेटर्स. तो मैं इसको लिखूंगा Y और इसको मैं लिखूंगा R. ठीक है, सो इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि यार Y से तो येलो होता है. नहीं, स्मॉल y मतलब क्या होगा? ग्रीन होगा, स्मॉल r मतलब रिंकल्ड होगा, कैपिटल R मतलब राउंड होगा, एंड कैपिटल Y मतलब येलो होगा. ठीक है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. सिंपल एंड इजी. सो नाउ मूविंग फर्दर, आप क्या करोगे? इनको क्रॉस कराओगे. तो अब मैं इसको जीनोटाइप, जैसे आपने इनिशियली जो किया था उसमें आपने फिनोटाइप दिखाया था, तो अभी जीनोटाइप के फॉर्म में अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक सेम चीज कर रहा हूं मैं, बट इन द फॉर्म ऑफ जीनोटाइप. सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था आपका, दैट गोज लाइक Y R. ठीक है, और आपके क्रोमोसोम पैर में होते, सो आई नीड टू पुट देम एज Y R R, क्योंकि अपने प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो जो दो क्रोमोसोम्स है इसके,
लेट्स से मैं क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, ये 2 क्रोमोसोम, ये एक पैर हुआ और ये दूसरा पैर हुआ। तो लेट्स से यहां पे देयर इज जीन फॉर येलो कलर, तो यहां पे भी जीन फॉर येलो कलर होगा, ठीक है। एंड देयर इज अ जीन फॉर ग्रीन कलर, आई एम सॉरी, जीन फॉर येलो कलर, तो यहां पे भी क्या होगा, येलो कलर होगा। और यहां पे देयर इज अ जीन फॉर सीड शेप, तो यहां पे भी क्या होगा, जीन फॉर सीड शेप होगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसीलिए आई हैव टू पुट देम 2 टाइम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, होमोलोगस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे देयर इज अ जीन फॉर सीड कलर, तो दूसरे क्रोमोसोम पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ जीन फॉर सीड कलर एज वेल, इट कुड बी कैपिटल वाई और इट कुड बी स्मॉल वाई। यहां पे पेरेंट्स को हमेशा अपन प्योर लेते हैं, तो इसलिए आई एम पुटिंग कैपिटल वाई ऑन बोथ द साइड्स। या फिर मैं अगर सीड शेप को कंसिडर करूं, तो एक क्रोमोसोम पे अगर होगा राउंड कलर, राउंड, तो दूसरे पे हो सकता है रिंकल्ड एज वेल, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आई हैव टू पुट देम इन दिस पैटर्न वाई वाई आर आर, ठीक है, बिकॉज एवरी क्रोमोसोम इज इन अ पेयर। दूसरा कंसिडर करते हैं, तो आई हैव टू यूज द स्मॉल अल्फाबेट्स, प्योर पेरेंट्स लेना है, ठीक है। सो दिस इज द वे इट गोस, सिंपल एंड इजी, के ऊपर से गया, डन, ठीक है। सो नाउ व्हाट, F1 जनरेशन बनेगी, दिस इज गोइंग टू गिव मी दी F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में क्या कॉम्बिनेशन आएगा, तो आपको पता है गैमेट्स जब बने थे यहाँ पे, तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, गैमेट्स में नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ओके, क्रोमोसोम का, तो इसका हाफ नंबर मतलब 2, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी Y एंड R एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी स्मॉल y एंड स्मॉल r। आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा स्मॉल y एंड स्मॉल r, कीप अ प्रैक्टिस ऑफ सेइंग दैट, ठीक है। कैपिटल Y कैपिटल, आई एम सॉरी, कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, दिस इज राउंड wrinkled, दिस इज what do you call it, this is yellow green, ठीक है, because Y is for yellow and R is for just a second, this is okay, so Y is for yellow and R is for round, ठीक है। तो मैंने लिया 2 कैरेक्टर, येलो एंड राउंड, and this is green, so this one is green and this is wrinkled, green and wrinkled, ठीक है, आपको याद रखना है इसको। Y is for green, Y ये रहा small, तो green हो गया, W R is for wrinkled, small r, तो that is wrinkled, done। so F1 जनरेशन में I'll get this combined, तो मुझे क्या मिलेगा, this is going to be like capital Y, small y, capital R, small r, ठीक है। this is my combination, जिसका this is a genotypic, ये जीनोटाइप है, तो इसका फिनोटाइप क्या आपको पता है, फिनोटाइप इज गोइंग टू बी व्हाट, सो कैपिटल Y है मतलब होगा येलो, और कैपिटल R है तो कैपिटल R इज राउंड। व्हाट अबाउट स्मॉल y एंड स्मॉल r, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल y एंड स्मॉल r आर वीक कैरेक्टर्स, दे आर रिसेसिव कैरेक्टर्स, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं अ वीक कैरेक्टर, अ वीक allele is not able to express itself in presence of a superior character or a dominant character। ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जो वीक अलील है, ओके, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर और डोमिनेंट और अलील, सुपीरियर अलील के उसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और डोमिनेंट अलील। तो आपको क्या करना है, सो अ वीक अलील इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सप्रेस, अ वीक कैरेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ वीक अलील, इट कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे डोमिनेंट वाला है, यहाँ पे भी डोमिनेंट वाला है, इसी वजह से जो वीक वाले कैरेक्टर्स है, वीक वाले अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अ वीक अलील इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर अलील और डोमिनेंट अलील, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। अब यहां पे जब F2 करेंगे, क्या करेंगे, इसका F2 सेल्फ पॉलिनेशन, आपको पता है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा।
अब जब इसका F2 करते हैं, F2 जनरेशन, अगर इसका F2 जनरेशन चेक करें तो आपको क्या मिलेगा? सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, गैमेट्स देख लेते हैं कि यार इसके गैमेट्स क्या बनेंगे पहले। सो गैमेट्स में काफी सारे कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी YR, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। अनदर कॉम्बिनेशन कैन बी लाइक Y स्मॉल r, ठीक है। अनदर कॉम्बिनेशन कैन बी लाइक स्मॉल y कैपिटल R एंड अनदर कॉम्बिनेशन कैन बी लाइक स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जितने भी कॉम्बिनेशंस, दिस आर गैमेट्स, दिस आर नॉट F2, दिस आर गैमेट्स। तो आप जो गैमेट देखो तो गैमेट का परसेंटेज अगर आप देखो तो इज 25%, इट इज 25%, 25%, 25%, 25%, ठीक है। और उसमें आप जो न्यू वैरायटी की अगर बात करो तो ये दो जो है दैट इज व्हाट, दिस आर न्यू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दिस आर रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। और मैंने आपको रीजन बताया क्यों रिकॉम्बिनेंट बनेगा, बिकॉज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, एंड दिस आर दी parental gametes, these are the parental gametes, simple and easy. In the previous lecture we did talk about the formula to obtain the number of gametes, okay, or types of gametes, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, 2n था, ओके। और यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो आप देखो यहाँ पे कितने टाइप के रिकॉम्बिनेंट है, दिस इज 1, दिस इज 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो अगर फॉर्मूला यूज करें 2n, so that is going to be 4, okay। so आपका आंसर क्या आएगा, I'm sorry, 2n, this is n, 2 types, so this is 2, so the formula is going to be 4 types of gametes। बने 4, 1 2 3 4, और चारों का परसेंटेज कितना है, 25%। फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने, 2n, यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। कितने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स है, 1 एंड 2, सो 2n कर दिया, सो दैट इज 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आपको मिल रही है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अभी एक और चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ओके, और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, देखो गैमेट्स में तो कितना है, सो दिस इज 50%, and the new combination is 50% as well, ठीक है। The new combination is 50% as well, the parental combination is 50% as well as the recombinant combination is also 50%, simple and easy। If I compare this with the monohybrid cross, मैंने आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड को आप इंडिविजुअली करके देखोगे या डायहाइब्रिड को आप ऑल टुगेदर करके देखोगे तो आपका आउटकम तो सेम होने वाला है। तो अगर उसमें गैमेट की बात करूं, उसमें गैमेट का परसेंटेज कितना होता था, तो अगर उस गैमेट परसेंटेज को देखना हो, आई रब दिस साइड, ठीक है। ये डायहाइब्रिड के गैमेट्स अपने लिखे हुए। सो मोनोहाइब्रिड कॉम्बिनेशन में अगर आप देखो, so what do I see? So let's talk about this combination first, कि यहाँ पे मुझे कितने y है, कितने r है, कितने कैपिटल Y है, कितने कैपिटल r है। सो आई टेक कैपिटल Y कितना है, कैपिटल Y, ओके। सो कैपिटल Y इज 50%, स्मॉल y कितने है, स्मॉल y 25, सो दिस इज 50%। कैपिटल R कितना है, सो कैपिटल R 50%, स्मॉल r कितना है, स्मॉल r इज 25, सो दिस इज 50%, ठीक है। अगर इफ आई टॉक अबाउट द मोनोहाइब्रिड में क्या था, कैपिटल T स्मॉल t था, अगर आपको याद हो तो कैपिटल T का परसेंटेज कितना था, उसमें जो गैमेट्स बने थे उसका परसेंटेज कितना था, सो दैट वाज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट वाज कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये कॉम्बिनेशन था ना आपका F1 में, ठीक है। तो जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल T और स्मॉल t बनेगा, मतलब कैपिटल T का परसेंटेज था 50% एंड स्मॉल t का परसेंटेज था 50%, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से डायहाइब्रिड में है उसी तरीके से मोनोहाइब्रिड में,
और यहां पे आप देख रहे हो कि दी अलील्स आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ ही नहीं है, या कैपिटल वाई कैपिटल वाई के साथ ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो सेपरेट हो रहे इंडिविजुअली, दे सेपरेटिंग इंडिविजुअली विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। इसलिए सबका परसेंटेज कितना है, 50-50% ही है, किसी का परसेंटेज ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेपरेशन जो है, सेग्रीगेशन जो है, असॉर्टमेंट जो है, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटरफेरेंस ऑफ अलील इज एब्सेंट। दोनों के केस में इंटरफेरेंस ऑफ अलील इज एब्सेंट। अगर इंटरफेरेंस होता तो जो परसेंटेज है ये चेंज हो जाता है, सेम नहीं रहता। ओके, 50-50-50-50-50-50। सो इंटरफेरेंस यहां पे एब्सेंट है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। So now let's take it with the help of the chromosome. इसको क्रोमोसोम के बेसिस पे समझे। क्रोमोसोम के बेसिस पे अगर इसे समझे तो लेट्स मेक 2 क्रोमोसोम्स। homologous chromosomes, this is one pair. I'll use another color for another pair. 23 pairs में नहीं बना सकता हूँ, 2 ही देखेंगे अपन। ठीक है, दिस इज, लेट्स कंसिडर दिस एज दी फर्स्ट पेयर, homologous pair, and this is the second homologous pair. ठीक है, so let's say there is a gene for color located here. तो दूसरा जो homologous chromosome है उसके ऊपर भी जीन तो लोकेटेड यहीं होगा। Let's put it as capital R, capital small r, because this is a homologous chromosome. यहाँ पे capital R भी हो सकता है, previous lecture में बात हुई थी, but I am talking about the F2 generation में जो आपको मिला था, capital R, capital small r, capital Y, small y, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे क्रोमोसोम के पास जो पैटर्न अवेलेबल है, that was capital Y and small y, capital Y and small y. So this is yellow, this is green, this is round, this is wrinkled. ये पता होना चाहिए आपको, small r is wrinkled, capital R is round, capital Y is yellow, small y is green. ठीक है, तो मैंने 4 क्यों लिखे थे, क्योंकि it goes like capital R, small r, capital Y, small y. ठीक है, I cannot put it as capital R and capital R, क्योंकि दोनों साथ में, ये पूरा क्रोमोसोम सेट साथ में होगा ना, बट जब मैं गैमेट बनाता हूं तो नंबर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, नंबर बिकम्स हाफ। ठीक है, तो गैमेट बनाते हैं अगर इसका, I'll put it in a simple way now. Okay, अगर मैं इसका गैमेट बनाता हूँ, चलो ये एक क्रोमोसोम है और ये उसका दूसरा क्रोमोसोम पैर जो है, और दूसरा अपन नहीं लिया, तो मियोसिस में क्या होता है, सेपरेट होता है। सो लेट्स पुट इट एज कैपिटल R, स्मॉल r, and let's put it as capital Y, I'm sorry, capital Y and small y. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, एक सेट का एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, दूसरे सेट का दूसरा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होकर कंबाइन हो जाएंगे। सो दिस वुड रिजल्ट इनटू, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, दिस इज रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस। ठीक है, so this is going to be capital R and this is going to be capital Y. ओके, सेपरेट होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन बना है। यहाँ पे आप सब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए मेयोसिस में क्या होता था। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू सेपरेट, सो दिस वुड रिजल्ट इनटू so this is going to be small r and this is going to be capital Y. So this is going to be my one combination. ठीक है, तो इसका अकरेंस कितना होगा, ये कॉम्बिनेशन का अकरेंस है 50% और याले का अकरेंस भी क्या है, 50% है। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज हो सकती है,
कि ये कैपिटल ये स्मॉल y अगर यहां पे आ जाता है, ठीक है, इफ दिस क्रोमोसोम पोजेसेस स्मॉल y, तो कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशंस फिर से चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे रब कर दूं, चलो यहां पे अपन कंसीडर करते हैं, यहां पे मैं क्या ले लेता हूं, आई टेक स्मॉल y एंड यहां पे कैपिटल Y ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, सो व्हाट वुड आई गेट नाउ इज आई गेट कैपिटल R एंड स्मॉल y, ठीक है। सो दैट वुड बी माय वन कॉम्बिनेशन, कैपिटल R एंड स्मॉल y। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल r एंड कैपिटल y, स्मॉल r एंड कैपिटल Y, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 50%। क्लियर है, गेटिंग द आइडिया? सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस। क्लियर है? सो गैमेट्स कौन कौन से मिलेंगे मुझे, तो गैमेट्स जो मुझे मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी लाइक कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r small y and small r capital Y, ठीक है। So these are the probability of the gametes which I would be getting from the F1 generation. Clear है? So one, this combination, this combination, okay, this combination, this combination, this combination, this combination, this combination, this combination, ठीक है। So this is how it's going to happen. तो ये क्या बने, गैमेट्स बने। अब इस गैमेट को अपन प्लेस कर देते हैं पुनेट स्क्वायर में। कहां पे प्लेस करेंगे, पुनेट स्क्वायर में प्लेस कर देते हैं इन गैमेट्स को। पुनेट स्क्वायर पे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस, द कॉम्बिनेशंस वर आर वाई आर स्मॉल y, ठीक है। फिर कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन यहां पे रहेगी क्योंकि आप सेल्फ क्रॉस करते हो। सो आई टेक ठीक है। So now we need to merge them up. We need to look at the probabilities. कितनी probabilities? 1, 2, 3, 4. It's going to be 16 probabilities. 16 outcomes आएंगे. Okay, 16 outcomes आने वाले यहाँ पे. तो let's put down the outcomes. So capital R, capital R, capital Y, capital Y. ठीक है. Capital R. This with this, this with this, this with this, this with this. Okay, capital Y small y, capital R small r, capital Y and capital R small r, capital Y small y. See, आप इस चीज का रट्टा नहीं मार सकते, you have to understand it. So how this is correct, capital R capital Y, capital R capital R, capital Y small y, capital R small r, capital Y, capital Y, capital R small y small, okay, ठीक है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। Okay, so this is capital R small r, capital Y capital Y, capital R small r, capital Y small y, small r small r, capital Y capital Y, small r small r, capital Y small y, capital R small r, capital Y small y, capital R small r, small y small y,
small r, capital Y, small y, and small r, small y, small y. Okay, so these are the 16 outcomes. These are the genotypes. Phenotype नहीं है, ये जीनोटाइप है. जिसका फिनोटाइप क्या है? What would be the phenotypic ratio अगर आप देखना चाहो तो? This is all going to be the F2 generation. ये जो भी आपको मिलेगा, this is going to be the F2 generation. ठीक है? So इसमें कितने प्लांट्स राउंड एंड येलो है, कितने प्लांट्स राउंड येलो एंड रिंकल्ड है, कितने प्लांट्स ग्रीन एंड राउंड है, कितने प्लांट्स ग्रीन एंड रिंकल्ड है. ठीक है, लेट्स सी. फॉर अ प्लांट टू बी राउंड एंड येलो, अगर प्लांट राउंड एंड येलो है तो उसके पास कौन से अलील्स होने चाहिए, उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए. तो राउंड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब द प्लांट शुड पोजेस, जो F2 जनरेशन है उसके पास एक R तो होना चाहिए, और Y भी क्या है, डोमिनेंट है, तो एक Y होना चाहिए. मैं डैश कर देता हूं. डैश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि R और कैपिटल Y अगर है तो भी क्या होगा, जो F2 जनरेशन का प्लांट है वो तो राउंड एंड येलो हो ही जाएगा, बिकॉज कैपिटल R इज डोमिनेंट, कैपिटल Y इज डोमिनेंट. दूसरा अल्फाबेट यहाँ पे जो भी हो, दूसरा अलील यहाँ पे जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है. ठीक है, अगर आई एम लुकिंग फॉर राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लांट विच इज राउंड एंड ग्रीन, तो यहां पे एक जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, दूसरा वाला वीक कैरेक्टर है. वीक कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है, जब वो दूसरे वीक कैरेक्टर के साथ है, जब वो दूसरे वीक अलील के साथ है. ओके, और डोमिनेंट वाला तो किसी के साथ भी एक्सप्रेस हो जाता है. तो यहां पे बिकॉज वन इज राउंड एंड अदर इज ग्रीन, एक कैपिटल R तो चाहिए, दूसरा आप स्मॉल r भी लिख सकते हो. और ग्रीन के केस में आपको क्या चाहिए, दोनों स्मॉल y चाहिए, बिकॉज ग्रीन इज रिसेसिव, इट्स वीक. अगर मैंने एक कैपिटल Y लिख दिया तो ग्रीन थोड़ी एक्सप्रेस हो पाएगा. तो ग्रीन के लिए आई वुड बी नीडिंग बोथ द स्मॉल अल्फाबेट्स. ठीक है, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट wrinkled and yellow, so wrinkled is a weak character, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, I would be requiring 2R, I would be requiring 2R, and yellow is a dominant character, तो उसके लिए मुझे एक Y ही चाहिए, दूसरा मैं स्मॉल y लूंगा तो भी चलेगा. ठीक है, और क्या हो सकता है, there can be wrinkled and green. So wrinkled and green के लिए, wrinkled is a recessive character, I'll use small r. ठीक है, और green is also a recessive character, तो मुझे स्मॉल y यूज करना पड़ेगा. समझ में आ गया. सो यहां पे अगर मैं ढूंढना चाहता हूं कि राउंड एंड येलो वाले प्लांट्स कितने हैं, तो जीनोटाइप में एक कैपिटल R होना चाहिए, एक कैपिटल Y होना चाहिए. अगर मैं ढूंढना चाहता हूं कितने राउंड ग्रीन है, तो यहां पे एक कैपिटल R होना चाहिए और दो कैपिटल Y होने चाहिए. अगर मैं ढूंढना चाहता हूं रिंकल्ड एंड येलो, तो दो कैपिटल R होने चाहिए, एक कैपिटल Y होना चाहिए, आई एम सॉरी, दो स्मॉल r होने चाहिए, एक कैपिटल Y होना चाहिए. और अगर मैं ढूंढना चाहता हूं 16 में से कि कितने रिंकल्ड एंड ग्रीन है, तो दो कैपिटल R चाहिए और दो कैपिटल Y चाहिए, आई एम सॉरी, दो स्मॉल r चाहिए एंड दो स्मॉल y चाहिए. ठीक है, तो लेट्स फाइंड इट आउट कितना है. कैपिटल R और कैपिटल Y है. ओके, यहाँ पे कैपिटल R है, कैपिटल Y है, कैपिटल R है, कैपिटल Y है, कैपिटल R है, कैपिटल Y है, कैपिटल R कैपिटल Y है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y. ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल R है, कैपिटल Y नहीं है. यहाँ पे कैपिटल R है, दो कैपिटल Y है, कैपिटल R कैपिटल Y. ओके, दिस इज नॉट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कैपिटल Y है, यहाँ पे भी नहीं है. ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं. ओके, सो आई गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so I get 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10. Okay, I'm getting 10 combinations here, so that means I have made some mistake somewhere. It should be not 10 combination. Let's check it out. Let's check it once again. Capital R, capital Y. See, this is wrong. This is small y. मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल y, देखा? So once you make a mistake, आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. So इसको हटा देते हैं यहाँ से. So this is now not capital R and capital Y, it's only capital R. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So I get 9 combinations which consist of capital R and capital Y. बाकी यहाँ पे मैं स्मॉल आर स्मॉल वाई रख दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि डोमिनेंट वाले तो है ही. सो दिस इज 9. दिस इज 9. आई होप यू गॉट इट नाउ. कैसे लिखा है मैंने? राउंड एंड ग्रीन के लिए क्या चाहिए मुझे? राउंड एंड ग्रीन के लिए आई रिक्वायर 1 कैपिटल आर एंड 2 स्मॉल वाई. सो 1 कैपिटल आर ओके एंड 2 स्मॉल. ओके, दिस आर 2 स्मॉल वाई एंड 1 कैपिटल आर. ठीक है, 2 स्मॉल वाई एंड 1 कैपिटल आर. ठीक है, 2 स्मॉल वाई. ओके, 2 स्मॉल वाई 1 कैपिटल आर. ठीक है, और कहीं तो कॉम्बिनेशन मुझे नहीं दिख रहा है. सो दिस इज 1 2 and 3. So I'll put it as 3. Wrinkled yellow के लिए I need to be looking for a combination which has 2 small r and 1 capital Y. 2 small r. Okay, this is 2 small r 1 capital Y. 2 small r 1 capital Y. 2 small r 1 capital Y. So this is 3. And for the wrinkled green I need 2 small r and 2 small y. तो ये रहा combination 2 small r and 2 small y. So this is 1. So my ratio turns out to be 9:3:3:1. ये जो ratio है ये किसका ratio? This is a phenotypic ratio. This is all F2 generation. वहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ. This is F2 generation and this is my phenotypic ratio. So phenotypic ratio of a dihybrid cross is 9:3:3:1. Clear है? 9:3:3:1 is the phenotypic ratio. But if it is asked what is the genotypic ratio, कि यार genotypic ratio क्या है? तो genotypic ratio कैसे निकालेंगे? दो मेरे को ये यहाँ पे दो तरीके दिखाता हूँ. I hope this is clear. So if I am looking for the genotypic ratio, so the total outcomes are 16. ठीक है, 16 आउटकम्स आएंगे F2 जनरेशन में. सो राउंड येलो वाले कितने हैं? हाउ मेनी आर राउंड येलो कॉम्बिनेशंस जो मुझे राउंड देंगे? तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर आपने देखा हो तो ये दिस इज वन कॉम्बिनेशन आर आर वाई वाई. आर आर वाई वाई दूसरा है क्या? नहीं है. सो आई पुट इट एज 1/16. आई पुट इट एज 1/16. दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे को राउंड येलो देगा? ये देगा क्या? सो आई पुट इट एज आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर लाइक दिस? इस टाइप के और कितने कॉम्बिनेशन है? तो जहां पे 2 कैपिटल आर है और 1 स्मॉल वाई है. ओके, ये इट इज. और कहीं पे है वाला कॉम्बिनेशन 2 कैपिटल आर्स एंड 1 स्मॉल वाई? नो. सो आई पुट इट एज 2/16. ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है? सो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ओके, तो ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है क्या? 2 कैपिटल वाई ओके और 1 कैपिटल आर. 2 कैपिटल वाई ओके, हियर इट इज, और 1 कैपिटल आर. सो दिस इज ऑल्सो 2/16. दो ही ऐसी पॉसिबिलिटीज है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सो कैपिटल आर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू राउंड एंड येलो. सो डू आई हैव सच काइंड ऑफ थिंग? ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मेरे पास. सो लेट्स सी. ओके, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज. ओके, एंड हियर इट इज 4. आई डोंट फाइंड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस. ओके, ये कॉम्बिनेशन मेरे को 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तो आई पुट इट एज 4/16. आई पुट इट एज 4/16. सिंपल एंड इजी. ठीक है, व्हाट अबाउट राउंड एंड ग्रीन? तो राउंड एंड ग्रीन के लिए
I'll be requiring what? Round and green कितने यहाँ पे? So round is this. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक है, that is R. I'll use the another color. R small y. This is one combination available. ऐसे और combinations available है क्या? So here it is and okay, here it is. और कोई combination available नहीं है. So I'll put it as 2/16. This is 2/16. ठीक है, simple and easy. दूसरा combination क्या हो सकता है? दूसरा combination हो सकता है capital R and small y. This is also going to give me round and green. I'm sorry, this is going to give me round and green. So do I have this combination? Okay, here this is one. Where else do I have this combination? Capital R होना चाहिए. Okay, maybe I have it one. एक ही है. So I'll put it as 1/16. Getting the whole thing. This is 2/16 क्योंकि दो थे. This is only one, so that is 1/16. What about the combination for wrinkled and yellow? So wrinkled का combination क्या होगा? ये combination है, small r, capital Y. तो उसका occurrence कितना है? तो where do I have it? Okay, ये it is small r, capital Y 1. और कोई combination ऐसा है? Okay, नहीं. और तो कोई combination नहीं है, so this goes 1/16. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे? स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव रिंकल्ड एंड येलो. सो डू आई हैव द कॉम्बिनेशन? यस आई डू हैव. कितने हैं? ओके, दो है, 2 ऑफ देम. ठीक है, तो आई पुट इट एज 2/16. ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन तो रिंकल्ड एंड येलो के लिए नहीं है. रिंकल्ड और ग्रीन की बात करें तो रिंकल्ड और ग्रीन के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? तो यार एक ही कॉम्बिनेशन चाहिए, दैट इज स्मॉल r and small y. So that is, I'll put it as 1/16. 1/16. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट कि मैंने जो लिखा है काउंट, इज इट करेक्ट और नॉट. अगर मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल R, स्मॉल y आउट ऑफ 16 देयर आर 2, तो आप चेक कर लेना कि 2 है कि नहीं. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कैपिटल R, स्मॉल y इज 1 आउट ऑफ 16, तो चेक कर लेना कि 1 है कि नहीं, बिकॉज ये रटा हुआ नहीं है, मैंने इससे रटा नहीं है. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. तो जो भी कैलकुलेशन किया आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सो पॉज द वीडियो, कैलकुलेट इट वंस एंड लेट मी नो कि यार सर ये पूरा सही. ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना मुझे. ठीक है, सो मेरा रेशियो क्या आएगा? सो द रेशियो इज गोइंग टू बी, वेयर शुड आई पुट द रेशियो? One is to 2 is to 2 is to 4 is to 2 is to 1 is to 1 is to 2 is to 1. This is going to be the ratio. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो जीनोटिपिक रेशियो है. कौन सा रेशियो? जीनोटिपिक रेशियो. इससे पहले जो रेशियो आपने लिखा था वो फिनोटिपिक रेशियो था. जीनोटिपिक रेशियो अगर आप चेक करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 is to 2 is to 2 is to, okay, should I put it as 4? Okay, ठीक है, 4 भी है. 4 is to 2 is to 1 is to 1 is to 2 is to 1. This is your genotypic ratio. समझ में आया? ओके कि नहीं आया? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाला मैंने? 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 2 is to 1 is to 1 is to 2 is to 1. So this is one way of finding out the genotypic ratio in the dihybrid cross. The another way to find out is by the forked line method. So how this is clear? ये रेशियो आ गया आपका. अब forked line method के थ्रू इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं. मैं इसको रब कर देता हूं. Hope this is clear.
So genotypic ratio for the dihybrid cross can be done by the forked method as well. Forked line method. Forked मेथड का नाम है forked line method. ठीक है. सो इसमें क्या करना है, तो फर्स्ट आई पुट ऑल दी गैमेटिक कॉम्बिनेशंस हियर. क्या था आपका, सीड कलर था या फिर सीड शेप ले लेते. ठीक है. तो कॉम्बिनेशंस क्या थे, सीड शेप के कॉम्बिनेशंस थे आर 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 स्मॉल आर. ठीक है. और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है. और इनका अकरेंस अगर आप चेक करो तो अकरेंस कितना था, कैपिटल आर का अकरेंस है 1/4. कैपिटल आर स्मॉल आर का अकरेंस होता है 2/4 एंड स्मॉल आर का अकरेंस होता है 1/4. ठीक है. अब सीड कलर भी ले लेते हैं. तो सीड कलर लेते हैं तो वी हैव कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ओके. और क्या आउटकम्स है, तो दिस इज ऑल्सो 1/4 2/4 एंड 1/4. ठीक है. आप प्रीवियस उसमें चेक कर सकते हो, यही आपका अमाउंट होगा. ठीक है. तो ये अब मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअली मोनोहाइब्रिड देख रहा हूं. ये मोनोहाइब्रिड का कॉम्बिनेशन है, ये दूसरे मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है. अब क्या करना है आपको, इस मोनोहाइब्रिड को इस मोनोहाइब्रिड के साथ मर्ज कर देना है. ठीक है. तो अगर मैं इस मोनोहाइब्रिड को इस मोनोहाइब्रिड के साथ मर्ज करूंगा तो क्या होगा, पे अटेंशन. सो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल आर कैपिटल वाई. सो दैट इज गोइंग टू बी 1/4 into 1/4. दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, okay, that is going to give me 1/16. ठीक है. ठीक है. So this was about the first one. दूसरा देखिए. So it can go along with this as well. So capital R capital Y small y. So the combination is going to be like 1/4 cross 2/4. So that is going to be 2/16. Then this goes with this as well. Capital R and small y. So this is 1/4 into 1/4. So this gives me 1/16. This gives me 1/16. ठीक है. तो इसका तीनों के साथ कॉम्बिनेशन देख लिया. अब इसका तीनों के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं. So we have capital R small r capital Y. So the combination goes like 2/4 into 1/4. So that is going to be 2/16. ठीक है. इसके लिए 2/16 है. Capital R small r capital Y small y. So the combination goes like 2/4 into 2/4. So that gives me 4/16. That gives me 4/16. ठीक है. Simple and easy. Okay, this with this now. So capital R small r and small y. So this goes like 2/4 into 1/4. So that is how much, 2/16. So we are done with the combinations. This with the 3. अभी last वाला देख लेते हैं. So last वाला is, so this is how much, 1/4. This is 1/4. This gives me how much, it gives me 1/16. ठीक है. Now this with this. So small r capital Y small y. Okay. So small r is how much, 1/4 into 2/4. That gives me what, that gives me 2/16. That gives me, okay, I'll put this. ठीक है. I'll put this combination here. यहाँ पे लिखते हैं इस combination को. So this with the second one R capital Y small y. So this is going to give me 1/4 into 2/4. That is 2/16.
ठीक है, 2/16 and this with this now, so small r and small y, so small r is 1/4 cross 1/4, that is 2/16, that is 2/16. I'm sorry, it's not 2/16, this is okay, this is 1/4 cross 1/4, this is also 1/4, so this is what, this is 1/16, 2/16, ठीक है, इससे पहले क्या था 1/16, ठीक है। तो ये आपके तीनों कॉम्बिनेशंस को चेक कर लिया। अब रेशियो निकाल लेते हैं बाय द फॉकलाइन मेथड। सो दिस इज गोइंग टू बी 2:1:2:2:2:4:2:1:1, ठीक है। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ फॉकलाइन मेथड, ठीक है। आप चेक कर लो, मैं फिर से एक बार देखता हूं, 1/4, 1/16, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। डन। सो द होल आइडिया इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, each and every allele, each and every character is assorted in a different way. It is not dependent on the other character. ये बात दिमाग में बिठा लो। The genes are assorted differently. They are not depending on the other gene or the other character for their expression. ठीक है। So आपने genotypic ratio निकाल लिया with the normal method, and then other method is known as the Falkline method. ठीक है, simple and easy. ये दोनों इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड है। यहाँ पे भी आप देखो, जैसे प्रोडक्ट लॉ बीन अप्लाइड, ओके, दोनों इंडिविजुअल को मिला दिया मैंने, तो क्या बन गया, डाइहाइब्रिड का रेशियो मिल गया। ये मोनोहाइब्रिड के रेशियो थे, ओके, दोनों को जब मर्ज कर दिया तो क्या मिला, मुझे डाइहाइब्रिड का रेशियो मिल गया, ठीक है। सी डोंट बी कंफ्यूज विद द नंबर, आपको ये इसको चेक करना है, ये और ये और ये। आगे वाले में नंबर जैसे 1:2:1 था, तो 1:1:2 भी हो सकता है, बट 1 किसके लिए रहेगा, इसके लिए 1 रहेगा, इसके लिए 1 रहेगा, और 2 इसके लिए, ठीक है। तो यू हैव टू लुक एट दिस, ये दोनों को साथ में रख के आपको नंबर्स देखने हैं। डोंट बी कि सर आपने तो पहले आगे 1:1:1:2 लिखा, नहीं, इट्स ओके। आप देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर दिस लेक्चर। मेक श्योर जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आप नोट्स साथ में बना रहे हो, नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर, ठीक है। चलो, बाय बाय।